सो आप सब मुझे बता सकते हैं कि आप लोग कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, किस सिटी से हैं, किस फील्ड से आपका ताल्लुक़ है? हमें भी पता चले आज हमें कहाँ-कहाँ से लोग ज्वाइन कर रहे हैं और कितने प्रोफ़ेशनल हैं ये सब। आई होप कि सब बहुत अच्छी फील्ड से होंगे। अच्छा जी, कराची, फॉर्म डी माशाल्लाह, हमदर्द यूनिवर्सिटी सही, हाफ़िज़ाबाद। हाफ़िज़ाबाद का सुन के बहुत अच्छा लगा। वेरी वेल, डेरा इस्माइल खान, ओके, ग्रेट, ग्रेट। माशाल्लाह आज बहुत ही काबिल लोगों ने हमें जॉइन किया है हमेशा की तरह। फाइनल ईयर फार्मेसी स्टूडेंट कराची, ग्रेट। सो कैसी रही आपकी जर्नी फार्मेसी की, मिस फ़िज़ा दिल अली? आई होप कि आज का सेशन आपके लिए एक अच्छा रहेगा, इंसाइटफुल रहेगा इंशाल्लाह। लैया, सो लैया ये तो हमारे भी करीब हो गया कॉलेज के, थर्ड ईयर फार्मेसी स्टूडेंट, ग्रेट। गुजरांवाला, ओके, नाइस टू मीट यू। फार्म डी, ग्रेट, ग्रेट वर्क। चार सुधार मियाँ वाली, बायोटेक्नोलॉजी, आईयूपी बहावलपुर, फाइनल ईयर फार्म डी। ऑलमोस्ट फार्मासिस्ट ने हमें ज्वाइन किया आज और अदर फील्ड्स के लोग भी हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशंस, I will welcome all of you. I hope you will enjoy the session as well as you can gain the effective knowledge for your field, inshallah. We are just starting in 5 minutes, don't worry. Again, I request everyone to please off their mics and cameras. We are starting now. Before we move ahead, now it is my absolute honor to introduce our esteemed speaker, Dr. Maria, for today. Ladies and gentlemen, get ready for an insightful and inspiring session as we have an exceptional personality with us today, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, इनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। Our speaker is a gold medalist reflecting outstanding academic excellence and dedication in her field. She holds an MPhil and a PhD in neuropharmacology, demonstrating deep expertise in advanced neuroscience and pharmacological research. She is an intentionally certified professional with credentials from globally recognized organizations, including Healthy Simulation US, Beckman Coulter UK, ISAC Academy, and Biorad Laboratories, California. She is also a distinction awardee and has earned multiple CBT and CME credits from prestigious institutions such as the Royal College of Surgeons of Edinburgh, Elsevier, and Clarivate Analytics UAE, with advanced training from organizations like CESPRIC, COSMEC, and Eton Business School UAE, along with participations in global platforms including CAPS Saudi Arabia and International Neuroscience Symposiums in New York. She brings strong global exposure and valuable expertise. She has also collaborated with leading universities and institutions across Pakistan and Malaysia, making her profile
truly diverse and impactful. Please join me in warmly welcoming Dr. Maria. Over to you, ma'am. Thank you for appreciating me with your very kind introduction and also giving me the opportunity to be here. Our player, ma'am. I hope this session will be very lively, participatory, and the discussion oriented. Inshallah. Inshallah. Students, Bismillahirrahmanirrahim. Today we will be discussing on the topic preclinical pharmacology. Preclinical pharmacology using animal models to predict the clinical outcomes. This will be our topic of today's session. And I hope that all people are very good, very competent, and very literate. Please mute कर दें अपने mix microphones and videos को switch off कर दें. We are here to keep good tone, good morale here. Thank you. Okay. Students, in this topic, we will be discussing these points which are mentioned in the outline, starting from preclinical pharmacology till pinpricks experiences or the case studies. First of all, we will be discussing what is preclinical pharmacology, why does it matters, why does it belong to us, why it is very crucial for conducting the clinical trials, and why it is important for the medicine formulation, medicine approval, medicine availability to you people, volunteers, healthy patients. And what are the case studies, previous old case histories, case studies which lead to the robust, strongest preclinical experimentation or the animal models or the animal trials? And what are the current case studies of the pharmacological administration into the animals or the rodents and later on in the humans for the clinical trials, and how we are shifting or the moving from lab to the clinical setup, and what are the further case studies and their instances, examples, and what is the pinprick experiences regarding the preclinical pharmacological trials or the experimentations. So बच्चों ये चीजें हम डिस्कस करेंगे इन आवर होल सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर. Starting from here, what is the crucial steps which are very important in conducting the clinical trials? In conducting the clinical trials, while approaching the humans, while approaching the patients, while approaching the end users, while approaching or conducting the experimentation in the human beings, either healthy or either diseased, we need to go through, we need to pass through the first step, the very first step in the drug developmental processes or the phenomena or the mechanisms, which is called preclinical pharmacology. Preclinical pharmacology is also known as animal trials. It is also called as an prior human experimentation. This is pre means before, prior. Clinical means human. Pharmacology, all people know because most of them, 90% population or the participants here belong to the doctor pharmacy 5 years profession. So pharmacology is the combination of two things, pharmacodynamics and the pharmacokinetics. It means that pharmacokinetics and the pharmacodynamics means that the action of the drug on the body and the body responds to the particular drug. Drug may be promising leading compound, the drug may be biological agent, the drug may be called as drug product, drug substance, active pharmaceutical ingredient जिसको API भी कहते हैं. It may be the lead compound, it may be the biological reactive agent. So these things will be interrelated and they are synonymically related to each other, and we call one term or the one jargon with another word. So these all these things are similar. So what is the purpose of preclinical pharmacology? Students, we used to conduct or we used to administer the promising or the selected or the developed or the discovered drug in the human beings
before या after या followed by the animals experimentation. Humans तक approach करने से पहले we need to test those drugs in the animals, and the animals may be rodents, they may be non-human primates. Rodents may be rats, mice, guinea pigs, rabbits. So what is the purpose? Why does it matter? What is the significance of this? क्या क्रिशलिटी इसकी है? Number one, first of all, administering these drugs. Which drugs? Discovered investigational drugs, the promising lead compounds, into the animals is to detect, is to measure, is to evaluate the potential. Potential means probability. To evaluate those things, क्या things? Compounds. क्या measure करना है? Efficacy or the safety patterns before administering or direct administration or direct approaching to the human beings ethically. So this is the reason why we are conducting the preclinical pharmacological trials or the animal trials or the prior human trials. Number one, why does it matter? How, what parameters or the what measures it is conducting? Number one, it measures the adverse drug reactions, it measures the adverse events, it measures the side effects, toxicity, lethal dose, bioavailability, efficacy, absorption rate, distribution pattern, metabolic activity, and lastly, elimination patterns of the particular administered drug which is under the investigation. But it is discovered and have promising activities. Promising means favorable activities after going through the robust or the monotonous phases. So this is the whole purpose of preclinical pharmacology, and it takes almost 2 to 4 years. Animal trials almost take 2 to 4 years, and it consists of three studies: in vivo, in vitro, ex vivo. In vitro, ex vivo, in vivo. And fourth one, exceptional, modern one, is the in silico studies, which are the computational studies. In vivo means we need to administer the drug in the rodents, animals, and evaluate the different parameters. Parameters means clinical endpoints in the humans, within the living, in the humans as well as the animals. But lively, direct correlated, directly related, and directly linked with the human beings and studying their mechanisms. कौन से मैकेनिज्म? फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, पैथोलॉजिकल पैटर्न्स, डिजीज पाथवेज, mechanism of action of drugs in the humans, living organisms, or the rodents. In vitro means we need to isolate those tissues or the cells which are very important or relevant or pertinency to the disease into the cells, glass tubes, and outside the body, and then grow them, I mean do cell culturing for the evaluation of particular administered drug. This is called in vitro technique, in vitro processes, in vitro molecular techniques, in vitro processes. And third one, ex vivo. Ex vivo means we used to remove the isolated organ and keep them in the controlled conditions with the temperature, humidity equivalent to the human body, and do the experimentation or find out the different parameters related to the clinical endpoints. So these things are going to be discussed in the clinical pharmacology, and this is the reason we used to do animal experimentation. This is the crux. This is the first step which needs to be very kind attention of you people before delving into the details. सो व्हाट इज द पावर ऑफ एनिमल मॉडल्स? क्या इनकी अहमियत है? क्यों हम करवा रहे होते हैं? हम एनिमल्स ही को क्यों ले रहे होते हैं? व्हाट इज द रीजन ऑफ टेकिंग द एनिमल्स फर्स्ट बिफोर गोइंग टू द ह्यूमंस? वी नो दैट वी हैव टू evaluate potency and the efficacy matter. We need to determine the safety profile or the efficacious pattern of the drugs. But students, the thing which is very important, why we are taking the animals, why we are not conducting the in vitro studies directly using the cells, isolated cell culturing techniques, and then move into the human trials or the clinical trials? हम animals को ही क्यों utilize करके clinical trials की तरफ जाते हैं? First of all, because animals have the integrated physiology, means to say that they have multiple organ interactions, multiple organ system. We all people, we all students, talented students know that multi organ interaction means that all people know cells combine to form tissues, collection of tissues make organs, and the different organs
performing different functions makes one system collection of the system makes one living organism. Different functions, different systems performing different functions make one living organism. So different organs means, if we are discussing the ADME pattern of pharmacokinetics within the humans, within the animals, if we are discussing animals, then we are talking about the rodents. The absorption pattern, distribution, metabolism, elimination, depending upon the route of administration. Route of administration may be intravenous, IM, subcutaneous, sublingual, inhalation patterns, intranasal patterns, transdermal patches, rectal, in the form of pessaries and suppositories. कहने का मतलब बच्चों, अगर हम ओरल रूट से ले रहे हैं तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को देखना है कि एब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है, ये ऑर्गन हमारे पास आ जाएगा. अगर डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं तो ब्लड प्लाज्मा और सीरम. मेटाबॉलिज्म देख रहे हैं तो वी नीड टू गेट इनटू द कंसिडरेशन ऑफ लिवर, anatomical states, as well as the physiological patterns, physiological mechanisms within the hepatocytes. If we are discussing the elimination patterns, we should be considered kidneys, renal system, liver, lungs, feces, sweat glands. So this is the integrated system, interconnected organ system, which is called the integrated physiology, which is similar to the humans. So this is the reason why we are taking the animals. Second thing, students, the anatomy as well as the physiology of the animals are clinically relevant to the humans. Third one is, we need to evaluate the pharmacodynamic pattern of the drugs within the rodents. But lastly, we need to compile all these data, means preclinical data, into the proposed application which need to be submitted to the FDA through INDA. INDA means एक application होती है जो already we discussed in the prior sessions. But in case of Pakistan, we need to submit it to the DRAP through the CTA, clinical trial application, for the commencing the clinical trials within the humans. हम लोगों ने इसके डाटा की फाइलिंग के लिए भी इस डाटा को कंपाइल करना होता है, एंड दिस इज द रीजंस वी नीड टू गो थ्रू, वी नीड टू पास थ्रू द एनिमल स्टडीज विच आर कॉल्ड द प्री फार्माकोलॉजिकल ट्रायल्स, animal trials, animal experimentations. So this is the reason, and this is the huge impact of the animal models, right? Now students, what are the previous case histories? कौन सी case histories थी which emerged the need of preclinical testing, and which is what type of preclinical testing? Robust, strong, modernized. हमें किस चीज ने कायल किया कि हम क्लिनिकल ट्रायल्स की तरफ जाएं, या हम प्री क्लिनिकल टेस्टिंग को इतनी अहमियत दें? वो अहमियत का हामिल क्यों हुए? द रीजन इज दैट वी सफर्ड अ ट्रेजिक और ह्यूज लॉस in the 1950s. In the late 1950s, we suffered or encountered a thalidomide toxicity case study, or the tragedy. What was that tragedy? Students, we all people know that, most of them people are familiar with this case study or the tragedy. Basically, thalidomide is the anti-motion sickness drug or the anti-sedative drugs. For the, आपको पता है, the pregnant females, either in first trimester, second trimester, and the third trimester, mostly suffer from nausea and the vomiting patterns. They used to feel these nauseous condition, often nauseous. So for that purpose, this drug was administered to those pregnant ladies and the pregnant women in the late 1950s, by considering them as an anti-sedative and anti-nauseous medication. But unfortunately, we suffered from different harmful effects, obnoxious consequences. These were, कौन से हमने बहुत हार्मफुल फैक्टर्स को या कौन से इफेक्ट्स जो फाइंड आउट किए थे जिसकी वजह से बहुत बड़ा ह्यूज लॉस हुआ? नंबर वन, टेराटोजेनिक इफेक्ट्स हमने फाइंड किए थे जब थैलेडोमाइड दी गई उन प्रेग्नेंट फीमेल्स को 1950s में. तो हुआ ये कि फीटल और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस जो बेबीज की होती हैं वो डिस्टर्ब हो गई, वो एबनॉर्मल हो गई. हुआ क्या? लिम्स एबनॉर्मलिटी आ गई, जिसको कहते हैं फोकोमिलिक कंडीशन हो गई. उनके लिम्स एबनॉर्मल हो गए, हार्ट के अंदर प्रॉब्लम्स आने लग गए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होने लग गए, एंड द ग्रोथ रिटार्डेशन हो गई. फीटल ये जो बेबी ग्रोथ होती है विद इन द प्लेसेंटा वो स्टॉप हो गई. सो दीज वर दी अनइंटेंडेड findings or the outcomes after the administration of the thalidomide in the pregnant women. It was assumed to be anti-sedative and anti-nauseous, but unfortunately this was the condition outcome which we suffered, and this is the reason for the for the emergence of the preclinical trials or the experimentation.
सो स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू से दैट दिस डिजास्टर, ये जो ट्रेजेडी थी, इसकी वजह से क्या हुआ, हमने अपनी प्री क्लिनिकल स्टडीज को वजूद में लाया. ऑलरेडी दे वर emerged, बट दे वर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज नाउ अडेज एज द करंट स्टेटस. द रीजन इज दैट इस स्टडी के बाद हमें पता चला कि जो हम प्री क्लिनिकल एक्सपेरिमेंटेशन मतलब एनिमल्स पे जो स्टडीज करते हैं, उनके अंदर हमें टॉक्सिसिटी पैटर्न्स को और रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स को भी देखना पड़ेगा. मतलब एवेलुएट करना पड़ेगा, उनके ऊपर भी स्टडी करनी पड़ेगी, फीमेल माइस को लेके, फीमेल रैट्स को लेके, फीमेल रैबिट्स को लेके. मतलब सेक्स स्पेसिफिक होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट व्हाई दिस हैपन टू दीज प्रेग्नेंट वुमेन. हुआ क्या था, इसकी डेफिशिएंसी, इस तरह का डाटा इनसफिशिएंट था, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो क्लिनिकल आउटकम हमें ह्यूमंस में और प्रेग्नेंट फीमेल्स में देखना पड़ा. और जो बेबीज की जो बर्थ हो रही थी, या तो वो एबनॉर्मल होते थे, उनकी डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम में होती थी, या रिटार्ड हो जाता था स्टेज. ठीक है. अब हमने क्या लेसन लर्न किए इस ट्रेजेडी, इस डिजास्टर से. नंबर वन, वी नीड टू रिपेयर. ओवरहाउल का मतलब होता है स्टूडेंट्स, वी नीड टू रिपेयर और रीबिल्ड, रीवैम्प और इंप्रूव द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि हम लोगों को, जब हमने एफडीए को या ड्रैप को अपनी फाइलिंग करनी होती है, फाइलिंग का मतलब एप्लीकेशन देनी होती है कि भाई हमने एनिमल स्टडीज कर ली हैं, वी नीड टू स्टार्ट, वी आर इन द डायर डिमांड ऑफ इनिशिएटिंग द क्लिनिकल ट्रायल्स. हम ह्यूमन स्टडीज भी करना चाहते हैं, ताकि अब आखिर में मार्केट में आए और ह्यूमन पेशेंट्स यूज करें. अब उसमें क्या वजूहत आ रही थी, जब हमने एप्लीकेशन देनी होती है तो एप्लीकेशन का एक प्रपोज्ड पैटर्न होता है, जिसके अंदर हमें मेंशन करना होता है टॉक्सिसिटी स्टडीज को, प्रपोज्ड क्लिनिकल ट्रायल प्लान को, स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉड्यूल 1 एडमिनिस्ट्रेटिव मॉड्यूल, नॉन क्लिनिकल एक्टिविटीज. वी ऑलरेडी नो, हम सबको पता है क्या क्या प्रपोज्ड क्लिनिकल ट्रायल प्लान होता है. सो दिस प्रपोज्ड क्लिनिकल ट्रायल इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें आपने एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन देनी होती है, आपने क्वालिटी, केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग ड्रग की डिस्कस करनी होती है, आपने फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन को डिस्कस करना होता है, कैसे कैसे वजूद में आई, क्लिनिकल इन विवो डाटा मेंशन करना होता है, आपने प्रपोज स्टडी प्रोटोकॉल के स्टडी क्लिनिकल ट्रायल क्या होगा, मल्टी सेंट्रिक, यूनिसेंट्रिक होगा, इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर की इंफॉर्मेशन क्या है, ये सारी चीजें, या उसने कैसे मेडिसिन को यहां तक पहुंचाया, स्टार्टिंग फ्रॉम द डिस्कवरी टू दी प्री क्लिनिकल स्टडीज. तो ये सारा डाटा हमने देना होता है, और इस डाटे में मैंडेटरी कर दिया गया आफ्टर दिस ट्रेजेडी बाय मेकिंग द अमेंडमेंट्स. कौन सी अमेंडमेंट, ये जो नाम लिखा हुआ है, कैफूवर हारिस अमेंडमेंट, ये यूएस फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक के अंदर अमेंड किया गया था. और इस अमेंडमेंट के अंदर ये डाला गया था, और ये क्यों की हुई थी, क्योंकि वी हैव द कंसर्न्स आफ्टर दिस ट्रेजेडी अबाउट द सेफ्टी एंड द एफिकेसी. और इसमें हमने क्या करना था, रिपोर्टिंग करनी थी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की बिफोर कमेंसिंग द क्लिनिकल ट्रायल्स. उसका एविडेंस देना था, साइंटिफिक एविडेंस, किसको, एप्लीकेशन के अंदर वो सबमिट करानी थी हमने ड्रैप में और या एफडीए में. तो उसके बाद उसकी फाइलिंग रिव्यू के बाद हमें परमिशन मिलनी थी. पहले ये चीज डेफिशिएंट थी, इनसफिशिएंट थी, लोग इसको एडीआर को रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्लिनिकल टेस्टिंग, प्रॉपर इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म की काफी डेफिशिएंसीज थी, जिसकी वजह से ये ट्रेजेडी हुई. और इस ट्रेजेडी के बाद हमने रिपेयर, रिवैम्प कर लिया अपना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बाय कीपिंग इनटू अकाउंट या कंसीडरिंग into account or taking into account the scientific evidence of the preclinical test or the reporting of the ADRs. So this was the whole story, students, short and brief, कि इस ये लेसन हमने लर्न किए. अब मजे की बात ये कि why preclinical pharmacology, आई एम सेइंग दैट वाई प्री क्लिनिकल फार्माकोलॉजी स्टिल मैटर्स. स्टूडेंट्स, अब ये प्री क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, जब इतने प्रॉब्लम्स, इतने चैलेंजेस हो रहे थे, हमने रिवैम्प भी कर ली अपनी, तो वाई वी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस इशू. मतलब फिर भी हम इसकी तरफ क्यों जा रहे हैं, जब हमें पता है इतने चैलेंजेस हैं, हमने रिवैम्प भी कर लिया, स्टिल वी आर फेसिंग डिफरेंट ट्रांसलेशनल इशूज. आई विल डिस्कस व्हाट आर दीज इशूज इन द लेटेस्ट स्लाइड्स. एनिमल टेस्टिंग स्टिल क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसकी वजह यह है कि इंसानी फायदे की पहली सदा यही होती है, ह्यूमन बेनिफिट्स की सबसे बड़ा पहला स्टेप यही होता है, क्या, प्री क्लिनिकल फार्माकोलॉजी. प्री क्लिनिकल तहकीक पर दवा की इब्तदा होती है. इंसानी फायदे की पहली सदा यही होती है, प्री क्लिनिकल तहकीक पर हर दवा की इब्तदा होती है. हर मेडिसन का वजूद में अमर्ज होना या केम इनटू एक्शन होना आफ्टर द प्री क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, आफ्टर द एक्सपेरिमेंटेशन ऑन द रॉडेंट्स, इसकी अहमियत इतनी है. सेकेंडली स्टूडेंट्स, व्हाई डज इट मैटर, वी नीड टू फिल्टर. क्यों इब्तदा होती है, क्योंकि हमने इस स्टेप में फिल्टर आउट करना होता है अपना प्रोमाइजिंग कैंडिडेट ड्रग सब्सटेंस, ताकि हम क्या कर सकें, इम्प्रॉपेबल, वो लो पोटेंशियल ड्रग्स को विड्रॉ कर सके, रिमूव कर सके, डिस्कार्ड कर सकें.
प्रोमाइजिंग मॉलिक्यूल और ड्रग कैंडिडेट कौन सा होता है? वो ड्रग कैंडिडेट जिसकी अच्छी सेफ्टी पैटर्न्स हैं, जिसका एफिकेशियस रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और टॉक्सिसिटी पैटर्न्स लेस हैं। इस प्रोमाइजिंग लीड कंपाउंड को फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू गो थ्रू दिस स्टेप ऑफ एन एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन। वी आर नॉट बाउंड टू अवॉइड दिस स्टेप। हमें बाईपास नहीं करना ये स्टेप। दिस इज द रीजन। अब उसका नतीजा या कंक्लूजन या वजूहात क्या है, ताकि हम अपने क्लिनिकल रिसोर्सेज को सेव कर सकें। क्लिनिकल रिसोर्सेज मीन्स दैट वी नीड टू सेव आवर टाइम, वी नीड टू सेव मनी, वी नीड टू यूज द एनिमल, हम ताकि अपने ह्यूमन वॉलंटियर्स और एनिमल को सेव कर सकें, उनको वेस्ट ना करें, बार बार इस तरह इस चीज को रिपीट करते ना जाएं। तो दिस इज द रीजन कि प्री क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज स्टिल मैटर, ये स्टिल मैटर करती है, इट इज स्टिल इंपॉर्टेंट आफ्टर फेसिंग द मल्टीपल challenges by revamping our framework and by revamping our clinical trial proposed plan। ठीक हो गया? नाउ नेक्स्ट व्हाट, अच्छा हमने रिवैम्प तो कर लिया, अब क्या प्री क्लिनिकल टेस्टिंग के अंदर हमने मॉडर्नाइजेशन लाई है? कौन सी ऐसी चीजें लाई हैं कि हमने इसको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को रिवैम्प तो कर लिया, लेकिन अब हमने कौन सी नई चीजें लाई हैं कि जिसकी वजह से हम इसको बेटर बना सकते हैं, ताकि वो जो रिपीट स्टोरी ना हो जिस तरह थैलेडोमाइड टॉक्सिसिटी 1950s में हुई थी। नंबर वन, स्टूडेंट्स पहले एक दफा सीक्वेंशियल पाइपलाइन देख लें। वी ऑल नो दैट बट वी नीड टू गो थ्रू इट। इन विट्रो स्टडीज के बाद एनिमल मॉडलिंग एंड देन क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, इन विट्रो कब आती है? इन विट्रो तब आती है जब ड्रग डिस्कवर होती है, लीड स्क्रीनिंग हो रही होती है। एनिमल मॉडल्स जो हम अभी प्री क्लिनिकल स्टडीज पढ़े, अभी डिटेल में पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे आगे स्लाइड्स में। क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब ह्यूमन ट्रायल्स में, जहां हमने क्लिनिकल एंड पॉइंट्स लेने होते हैं। दीज थ्री स्टेप्स। बट स्टूडेंट्स, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? आखिर ऐसा क्या मॉडर्नाइजेशन टेक्निक्स आई? सबसे पहले हमने क्या नया काम किया? न्यू थिंग वाज दैट हमने अपने एनिमल्स तो लिए थे, जिस तरह हम हमेशा एल्बिनो माइस ले रहे होते हैं, स्पैरेक डॉले रैट्स ले रहे होते हैं जो व्हाइट कलर के होते हैं। आई विल शो इट लेटर। स्टूडेंट्स, उन एनिमल्स को हमने क्या किया? जेनेटिक इंजीनियरिंग की, उनको मॉडिफाई कर दिया, जिसकी वजह से अच्छा मॉडिफिकेशन का फायदा क्या हुआ? मॉडिफिकेशन का स्टूडेंट्स ये बेनिफिट हुआ कि उनकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी जो ड्रग की थी और जो उनका फिजियोलॉजिकल पैटर्न था और जो पैथोजेनिकल जो पाथवे था, वो सब मिमिक होने लग गया। मीन सिमिलैरिटी शो करने लग गया। इट शोज सिमिलैरिटी क्लोज टू द ह्यूमंस, ह्यूमन बींग्स के बिल्कुल क्लोज होने लग गया। कहने का मतलब उनकी हमने बायोलॉजिकल एक्टिविटी और जो पैथोलॉजिकल जो पाथवेज जनरेट हो रहे थे डिजीज के बाद, वो सिमिलैरिटी शो करने लगे ह्यूमंस। ऑलरेडी दे डू शो, बट इससे क्लोज रिजेंबलेंस होने लगी। सबसे बड़ा फायदा ये हुआ। अब इसका क्लिनिकल आउटकम क्या होता है हम डिस्कस करेंगे, तब यू विल बी एबल टू नो दैट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, स्टूडेंट्स पहले तो हम सिर्फ बिहेवियल एनालिसिस करते थे कि एक बीमारी लगी है, चलो जरा बिहेवियल टेस्ट कर लो, जिस तरह आप हर लैब में देख रहे होते हैं पीजीज की, पोस्ट ग्रेजुएट एमफिल और पीएचडी स्कॉलर्स की लैब में, कि लोग वो एनिमल्स लेके कभी किसी डब्बे में डाल रहे हैं, कभी क्या टेस्ट कर रहे हैं, कभी ब्लड सैंपल ले रहे हैं, तो कभी आपने नोटिस ऑब्जर्व किया होगा। तो स्टूडेंट्स, ये टेक्निक्स एनफ नहीं थी ना। हम लोगों ने करना ये था, हमें थोड़ा सा डिटेल में जाना था। हमने इमेजिंग टेक्निक्स डाल दी। इमेजिंग टेक्निक्स में अल्ट्रासाउंड डाल दिया, हमने एक्सरे डाल दिया, एमआरआई डाल दिया एनिमल्स का ही। क्या करना था? उनके ब्रेन का एमआरआई करने लगे, स्पाइनल कॉर्ड का, बोन्स जो थी एनिमल्स की उसका एक्सरे शुरू कर दिया, लंग्स को देखने लग गए। तो और साथ ही हमने पॉजिट्रॉन इमेजन ग्राफी भी डाल, ट्रांसमिशन भी डाल दी। क्या उसको, क्या मेटाबॉलिक चेंजेस, मेटाबोलाइट्स को चेक करने के लिए। इसी तरह हमने डिफरेंट सॉफ्ट टिश्यूज, हार्ड टिश्यूज को डिटरमिन करना शुरू कर दिया एनिमल्स के अंदर ही। अभी ह्यूमंस को डिस्कस नहीं कर रहे। तीसरी बात हमने क्या डाली? मॉलिक्यूलर स्टडीज डाल दी। मॉलिक्यूलर स्टडीज का स्टूडेंट्स मतलब होता है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे हो गए, इनविट्रो जीसीएच, एंटीऑक्सीडेंट ऐसे, जीएसटी, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स। जिस तरह आप जब इंसुलिन को चेक कर रहे होते हैं या डायबिटीज को चेक करना होता है, वी नीड टू मेजर दी व्हाट ग्लाइसेटेड एचबी लेवल्स आरबीसीज पे चेक करना होता है, ट्रोपोनिन लेवल सीवीएस में चेक करने होते हैं। सो दीज आर दी मॉलिक्यूलर स्टडीज। तो डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू फिर इनको हमने डिटरमाइन शुरू कर दिया करना। आफ्टर दिस ट्रेजेडी, विच ट्रेजेडी? थैलेडोमाइड्स ट्रेजेडी। ताकि हमें इसी ट्रायल पे, इसी स्टेज पे पता चल जाए कि आगे भी हम जाने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, क्या हमारे ह्यूमंस को नुकसान होगा कि नहीं होगा। एथिकली वी नीड टू डिटरमाइन all these things, or all the we need to consider the inclusion parameters in this stage, I mean in animal experimentation. So after this, the use of biomarkers or the biological signaling, we are able to modernize our old or outdated preclinical testing. Second thing is that this is how, this is the image which is showing that कि हम इस तरह एनिमल टेस्ट, बायोमार्कर्स, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स, एक्सपेरिमेंटेशन लैब स्केल पे परफॉर्म कर रहे होते हैं।
ग्रुप्स में भी, इंडिविजुअली भी, फिर डिफरेंट ई ट्यूब्स, डिफरेंट लैब इक्विपमेंट्स को यूटिलाइज करते हुए। सो दिस इज द वे स्टूडेंट्स, दिस इज द क्रक्स ऑफ द होल स्टोरी, कि हमने एनिमल्स लिए, फिर हमने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कराई, फिर तीसरा हमने क्या किया कि उनके रिक्वायर्ड टिश्यूज ले लिए। इन के आर केस, ये जो मैंने डायग्राम्स शो किए हैं, दिस इज माय केस स्टडीज ऑफ द एमफिल, कि मैंने ये किया था कि नर्वस सिस्टम पे काम किया था, तो मैंने ब्रेन लिया था, तो ब्रेन के अंदर भी कॉर्टेक्स हिप्पोकैम्पस को भी आइसोलेटेड ऑल दीज थिंग्स विद द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। हमने डिफरेंट फॉरसेप्स चीजों से हमने मीन्स कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट एमफिल स्कॉलर्स थे, उन्होंने किया। तो डिफरेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट ऑर्गन्स को भी नीड टू आइसोलेट। जिस तरह अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी पढ़ रहे हैं तो हमने शार्टिक नर्व को लेना है, इसका डिफरेंट डिफरेंट न्यूरोपैथी डिस्कस कर रहे हैं, वो भी पेरिफेरल, तो हमने हाइंड फॉर्म मतलब उसका पिछला लिम्ब रिएट माइस का ले लेना है, अभी आपको आगे नजर आएंगे डायग्राम्स में। फिर उसके ऊपर बिहेवियल करनी है, पूरा क्लिनिकल, पूरा जो स्टडी प्लान करने के बाद, पूरा इंजेक्शन देने के बाद हमने क्या करना है, बिहेवियल एनालिसिस करनी है। मॉनफ्रे फिलामेंट हो गया, ओएफटी ओपन फील्ड टेस्ट हो गया, डिफरेंट वाई मिस्ट क्या चेक करने के लिए स्टूडेंट्स, मेमोरी को देखने के लिए, अगर हम एल्जाइमर डिजीज पे कर रहे हैं, एमनेजिया पैटर्न को, मेमोरी लॉस तो नहीं हो रहा, क्या आपका न्यूरॉन्स डैमेज तो नहीं हो रहे। इसी तरह न्यूरोपैथी पेन के केस में पेन तो नहीं हो रहा, नमनेस तो नहीं कॉज हो रही, टिंगलिंग सेंसेशंस तो नहीं हो रही। हम तो ह्यूमन से हम तो रिपोर्ट कर देते हैं बाय आवर माउथ, वर्ड्स ऑफ माउथ और बाय द रिटन पैटर्न्स, एनिमल्स तो नहीं बता सकते, तो वी नीड टू डू द बिहेवियर एनालिसिस ऑन देम। ठीक है, हम बिहेवियर टेक्निक्स करते हैं, कभी किसी उसके ऑर्गन को टच करके, कभी किसी बॉडी पार्ट को टच करके, थ्रू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, कि आइदर उसकी व्हाट टाइप ऑफ अनइंटेंडेड फीलिंग है या गुड फीलिंग है या इट इज सेफ। इस तरह हमें पता चलता है विच ग्रुप, आइदर कंट्रोल, डिजीज, ट्रीटमेंट, डिफरेंट। तो यूजिंग दोज टिश्यूज हमने मॉलिक्यूलर स्टडीज करनी होती हैं। किस तरह करनी होती है, या तो हमने उसका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड लेना है, या ब्लड सीरम लेना है, या हमने क्या करना है, उसको डायरेक्टली उसका पूरा टिश्यू उठा लेना है, होमोजेनेट बनाकर उसको हमने डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्टडीज करनी है, जिसके अंदर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वेस्टर्न ब्लॉटिंग आता है, एम्सा होता है, डिफरेंट डिफरेंट है स्टूडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे मतलब हमने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मार्कर्स मैयर करने हैं, साइटोकाइंस, इम्यून सेल्स मैयर, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, दिस इज हाउ वी आर कंडक्टिंग द प्री क्लिनिकल स्टडीज और द एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक हो गया। नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट स्टूडेंट्स, अब हम जरा केस हिस्ट्रीज को डिस्कस कर लें। हम यहां से वी विल बी एबल टू नो दैट व्हाट एक्चुअली द इंपॉर्टेंस ऑफ प्री क्लिनिकल टेस्टिंग, विच challenges did we suffer in the past and what are the current challenges and how to revamp those challenges and how to mitigate or repair or counteract those things। ठीक है, केस स्टडी नंबर 1 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, पैक्लीटैक्सल इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी मींस कीमोथेरेपी या कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स, मतलब एंटी कैंसरस एजेंट्स की वजह से भी हमें न्यूरोपैथी हो रही होती है। न्यूरोपैथी का स्टूडेंट्स मतलब होता है नर्व पेन, चाहे वो पेरिफेरल है चाहे वो सेंट्रल है। बच्चों, इस स्टडी में हुआ क्या था, इस स्टडी में हमने एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, सो वी टुक रॉडेंट्स, रॉडेंट्स मतलब माइस या रैट्स सबसे पहले लिए। इन एनिमल्स को लेके हमने क्या पहले हेल्दी लिए थे, हेल्दी मतलब स्पैरेकडोले स्पीशीज, स्पीशी भी स्पैरेकडोले थी, हेल्दी मींस कोई डिजीज नहीं थे। एनिमल मॉडल्स में हमने डिजीज भी खुद लगानी होती है, चाहे उस एनिमल को कोमॉर्बिडिटी है या नहीं। कोमॉर्बिडिटी का मतलब होता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीज ऑलरेडी है, प्री एग्जिस्टिंग है, या अभी हमने खुद इंड्यूस करानी है ताकि उसको एक सिंगल डिजीज हो जाए। तो स्टूडेंट्स, पैक्लीटैक्सल इंड्यूस न्यूरोपैथी के अंदर हमने डिजीज इंड्यूस कराई थी टू पैक्लीटैक्सल, विनक्रिस्टीन, थैलिडोमाइड, सिस्प्लेटन, दीज आर दी एंटी कैंसरस एजेंट्स। देखें, एंटी कैंसरस एजेंट्स हम क्यों लेते हैं, ताकि हम ट्यूमर की ग्रोथ को मिटिगेट कर सकें, ट्यूमर के इफेक्ट को खत्म कर सकें, कैंसर चाहे वो बिनाइन है मेटास्टैटिक है उसको काउंटर एक्ट कर सके। लेकिन स्टूडेंट्स, इन कैंसर के जो साइड इफेक्ट्स आते हैं, जो इनके एरियाज आते हैं, उनमें इसने क्या कर दिया, नर्व पेन। किसी भी कैंसर पेशेंट को देखे उसको नर्व पेन स्टार्ट होता है, तो नर्व पेन इसने देना शुरू कर दिया। तो वहां से हमें पता चला कि हम एनिमल्स के अंदर इंडक्शन या इंड्यूसिंग एजेंट या न्यूरोपैथी कॉज करने के लिए एंटी कैंसरस एजेंट्स, जिनमें हम पैक्लीटेक्सल दे सकते हैं, राइट। अब पैक्लीटैक्सल ने क्या किया, पैक्लीटैक्सल ने उसके अंदर न्यूरोपैथी इंड्यूस कराई, और पैक्लीटैक्सल की न्यूरोपैथी इंड्यूस कराने के बाद हुआ ये कि हमारे पास जो नर्व फाइबर्स थे, दे वर एबल टू फील पेन, दे वर एबल, किस तरह टेम्परेचर सेंसेशन अफेक्ट होने लगी, पेन सेंसेशन अफेक्ट होने लगी। हमने कैसे पता किया, जब हमने डिजीज करवा दी तो लगवा दी, तो हमने उसकी स्किन की बायोप्सी करी, स्किन का टिश्यू ले लिया, स्किन की टिश्यू को होमोजेनेट बनाने के बाद डिफरेंट मॉलिक्यूलर टेक्निक्स, जिसमें आईएचसी इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री होती है, उसके थ्रू हमने पैरामीटर मैयर किया, कौन सा, एंटी प्रोटीन, एंटी
पीजीबी प्रोटीन जीन प्रोडक्ट मैयर किया, और सीजीआरपी मैयर किया, सीजीआरपी कैल्सीटोनन जीन रिलेटेड प्रोटीन। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है, ये आप इसको इतना आप दिस विल बी क्वाइट टफ फॉर यू पीपल, ये बायोमार्कर है, ये वो प्रोटीन, ये वो कंटेंट है जिससे हमें पता चलेगा कि अगर ये मार्कर ज्यादा है, इसका लेवल ज्यादा है या कम है आईएचसी के थ्रू। तो इससे क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के थ्रू हमें पता चलेगा ये लेवल कम है या ज्यादा है। इसके कम ज्यादा होने से वी विल बी एबल टू डिटरमिन आर एंड पॉइंट कि क्या न्यूरोपैथी इंड्यूस हो गई है, माइल्ड हुई है, मॉडरेट हुई है, सवेयर हुई है। उसके अकॉर्डिंगली वी नीड टू ट्रीट दैट न्यूरोपैथिक कंडीशन विद दी इंटरवेंशन, कोई भी ड्रग लेके। अब हुआ ये कि इस पैक्लीटेक्सेल ने क्या किया था, पैक्लीटेक्सेल कॉजेज द सेंसरी लॉस, एलोडीनिया, एलोडीनिक कंडीशन उसने कॉज की। अब स्टूडेंट्स, एलोडीनिया क्या होती है और हाइपर एल्जेसिक इफेक्ट। एलोडीनिया का मतलब होता है पेन आपको कॉज हो रही है लेकिन कोई स्टिमुलस, कोई भी चीज आपको नॉन पेनफुल स्टिमुलस, जो चीज आपको पेन नहीं देती उससे भी आपको पेन महसूस हो रही है। फॉर एग्जांपल आप किसी को टच कर रहे हैं या एनिमल एक एनिमल को टच कर रहा है तो उससे भी उसको पेन कॉज हो रही है। फॉर एग्जांपल एक नीडल अगर मैं प्रिक करती हूँ तो पेन होता है, अगर मैं प्रिक नहीं करती सिर्फ टच कर रही हूँ तब भी मुझे पेन हो रहा है। तो ये जो पेनफुल कंडीशन फ्रॉम नॉन पेनफुल स्टिमुलस इज कॉल्ड द एलोडीनिक कंडीशन। हाइपर एल्जेसिया होता है कि पेनफुल स्टिमुलस से पेनफुल कंडीशन लेकिन एग्जैजरेटेड पेन रिस्पॉन्स। सो दीज वर द आउटकम मेजर्स। लेकिन स्टूडेंट्स हुआ क्या, हुआ ये, अच्छा, अब जो इंटरवेंशन ली थी, जो मेडिसिन हमने ट्रीट करने के लिए ली थी, वो गाबापेंटिन ली थी। और गाबापेंटिन, वी ऑल पीपल नो दैट व्हाट इज गाबापेंटिन। गाबापेंटिन हमारे पास क्या करता है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है, ये न्यूरो पेन को रिलीज, पेन को मिटिगेट करने के लिए यूज होती है। तो इसने मैकेनिकल एलोडीनिया को एलिविएट किया, खत्म किया। एलोडीनिया मतलब पेनफुल सेंसेशन एलिमिनेट की। थर्मल हाइपरएल्जेसिया का मतलब होता है हीट की वजह से जो एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स हो रहा था। मैकेनिकल एलोडीनिया का मतलब होता है मैंने फिलामेंट टच किया, तो फिलामेंट टच कहाँ पे टच किया, एनिमल के हाइंड पॉ पे या फेस पे या कहीं भी स्किन के किसी भी बॉडी पार्ट पे, तो उसको पेन होता है और वो पेन होने की वजह से अपना बॉडी को शिवर करता है, ट्रेम्बल करता है। या अगर उसके हाइंड पॉ पे टच करे तो वो अपना पॉ ऊपर करता है, उसको कहते हैं विड्रॉ, विड्रॉ करता है, लिकिंग करता है, उसको चाटता है या जंपिंग शुरू कर देता है। तो ये डिफरेंट चीज बिहेवियल एनालिसिस के थ्रू वी वर एबल टू नो दैट मैकेनिकल एलोडीनिया एंड थर्मल हाइपरजेसिक इफेक्ट आर एलिविएटेड बाय यूजिंग दी गैबापेंटिन। और उन एनिमल्स के अंदर जिनके अंदर इंडक्शन पैक्लीटेक्सेल की वजह से न्यूरोपैथी की हो चुकी थी। और आईईएनएफ डेंसिटी का मतलब होता है आईईएनएफ। व्हाट इज आईईएनएफ, दिस इज द इंट्रा न्यूरोनल फैक्टर। ये एक नर्व फैक्टर है जो कि डर्मस के अंदर, स्किन के अंदर होता है, जिसको हम कहते हैं इंट्रा एपिडर्मल नर्व फाइबर। इसकी कंसंट्रेशन कम ज्यादा होने से भी हमें पता चल जाता है। ये सीजीआरपी कैल्सीटोनन जीन रिलेटेड प्रोटीन्स के लेवल से भी बाय यूजिंग द मॉलिक्यूलर टेक्निक और द क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस वी वर एबल टू नो दैट इनकी डेंसिटी, जिसकी वजह से पता चला कि गैबापेंटेन ने क्या किया, उसकी डेंसिटी को क्या किया, रीस्टोर किया इन नर्व्स की। नर्व्स डैमेज नहीं हुए, नर्व्स डैमेज नहीं हुए तो पेन सेंसेशन प्रोड्यूस नहीं, नॉसिसेप्शन नहीं हुआ। सो दिस वाज द केस स्टडी। तो स्टूडेंट्स अब हुआ क्या, आपका टेक अवे क्या है, टेक अवे ये है, दिस वॉज दी ओनली वन स्टोरी, वन केस स्टडी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दिस केस स्टडी यू विल बी एबल टू नो दैट व्हाट वाज द क्रक्स ऑफ दिस होल सेशन। सबसे पहले मैंने ड्रग इंडक्शन कराई तो उससे मुझे पैथोजेनेसिस पता चली, किस तरह पैक्लीटेक्सेल की, पैक्लीटेक्सेल से मेरे नर्व फाइबर्स अल्फा डेल्टा सी फाइबर्स माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स को डैमेज कर दिया था। इससे मैकेनिस्टिक प्रूफ मिल गया। बिहेवियल कैसे पता चला, मैंने उसकी बॉडी को बिहेवियल पैरामीटर्स मेजर करते हुए थ्रू बिहेवियल टेस्टिंग, जिसमें आपने मैकेनिकल एलोडीनिया, थर्मल हाइपरएल्जेसिक इफेक्ट रॉडेंट्स में चेक किए। तो इस तरह हम अपनी स्टडीज को ट्रांसलेशन एफर्ट्स तक लेके जाते हैं। ट्रांसलेशन एफर्ट्स का मतलब होता है क्लिनिकल स्टडीज तक लेके जाते हैं, इस डाटा को यूज करते हुए रिप्रोड्यूस करते हैं या रीटेस्टिंग करते हैं सेम ड्रग की इनटू ह्यूमंस, इनटू क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, अब हुआ ये कि गैबापेंटेन इस केस में क्या था, इन्वेस्टिगेशनल ड्रग था, टेस्ट ड्रग था। और जो स्टैंडर्ड ड्रग था वो क्या था, प्रीगैबलिन। प्रीगैबलिन मार्केट में अवेलेबल थी और हम सबको पता था प्रीगैबलिन हाईली पोटेंट है, इसकी कम डोज से एफिकेसी ज्यादा होती है और एफिकेसी मींस इट विल बी एबल टू मिटिगेट द न्यूरोपैथिक पेन। तो हमने इसके रिजल्ट्स को गैबापेंटेन के साथ मेजर किया और डिजीज के साथ मेजर किया। तो दिस इज द ग्राफ। ये ग्राफ कब आता है, आफ्टर इंडक्शन ऑफ द डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज दैट इंड्यूस डिजीज इन द rodents, देन उनका टिश्यू आइसोलेट करके एंड देन उसके बाद क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस करके ये ग्राफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर ड्राई लैब टेक्निक्स के थ्रू, ग्राफ पेट प्रिज्म अमूमन उसके थ्रू बन रहा होता है, या डिफरेंट एसपीएसएस इनके थ्रू। तो अब आपने कुछ भी नहीं देखना, जस्ट फोकस क्या करना है, 1 वीक वाले एक्स एक्सिस पे 1 वीक लिखा हुआ है, आपने इसके जो डिफरेंट कलर्स में ग्रीन, नेवी ब्लू, पर्पल, रेड, इस पे फोकस करें। जो ब्लू कलर एंड पर्पल ग्राफ की हाइट को नोटिस करें कि जो ब्लू कलर है इट इज दी
paclitaxel, and purple is the gabapentin and the red color is the pregabalin. आपने पर्पल कलर नेवी ब्लू को कंपेयर करना है, तो जो पैक्लिटाक्सेल जो नेवी ब्लू बार है उसका लेटेंसी पीरियड ज्यादा है और पैक्लिटाक्सेल प्लस गाबापेंटीन का काम है. द रीजन इज दैट द गाबापेंटीन मिटिगेट दी पैक्लिटाक्सेल इंड्यूस न्यूरोपैथी इन दी माइस. इधर से मुझे पता चल गया कि क्या हुआ, गाबापेंटीन ने अपना इंटरवेंशन पैटर्न शो किया है. दिस इज हाउ वी रिलेट wet lab techniques into dry lab techniques to different after passing through the animal experimentation. ये 10 to ये कम से कम 1-2 साल तो मिनिमम ले लेता है इन केस ऑफ PGs at the MPhil level. ठीक है, तो दिस इज दी ओनली फर्स्ट स्टेज ऑफ द ड्रग डेवलपमेंट. और इस आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं और कितनी डोज पे होते हैं, जैसे पैक्लिटाक्सेल 2 mg. दिस इज द वैलिडेशन ऑफ द आर्टिकल. नाउ द सेकंड थिंग इज दैट स्टूडेंट्स, अच्छा ये टेस्ट जो था एसीटोन ड्रॉप टेस्ट था. एसीटोन ड्रॉप मतलब मैंने एसीटोन को उसके हाइंड पॉ पे ड्रॉप किया, प्लेस किया, अप्लाई किया इंजेक्शन सिरिंज के थ्रू. जैसे ही अप्लाई किया तो एनिमल ने अपना पॉ विड्रॉ किया. पॉ मींस हाइंड लिम्स या फोर लिम्स विड्रॉ की. विड्रॉ करने से पता चला कि उसको पेन और या एलोडीनिक इफेक्ट है. लेकिन जब इंटरवेंशन वाला ग्रुप होगा तो वो विड्रॉ करने के चांसेस कम होंगे, टाइम कम होगा, तो वो टाइम वी आर नोटिंग, तो उसके बेसिस पे वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ. ठीक है, इसी तरह गाबापेंटीन डोजिंग फॉर न्यूरोपैथिक. अब इसको क्लिनिकल ट्रायल्स में, वो तो प्री क्लिनिकल स्टडीज थी, इसको क्लिनिकल ट्रायल्स में भी लाए. फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड देन फेज 4 मार्केटिंग अप्रूवल के थ्रू इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन द मार्केट. And we are taking this gabapentin as a standard drug, right? पहले वो investigational drug था, फिर ये gabapentin कैसे आया? It took almost 10 to 12 years to become available at the market level for the mitigation of the disease in neuropathic pain, neuralgia in the humans. ठीक हो गया, ये आपकी validation article is also published here. Students, this is how we move from lab to clinical patterns. From lab to clinical patterns means हमने प्री क्लिनिकल, लैब मीन्स प्री क्लिनिकल टेस्टिंग एनिमल ट्रायल्स की, देन हमने क्लिनिकल शिफ्ट आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम द ड्रैप थ्रू द डिवीजन ऑफ फार्मेसी सर्विसेज. हमने अप्रूवल ले लिया, उन्होंने हमें ग्रांट कर दिया अप्रूवल. फेज 1 इज ऑल अबाउट safety. Phase 2 is all about efficacy. Phase 3 is all about confirmatory phases of the efficacious investigational drug which is produced in the phase 2. ये भी we already discussed in the prior sessions. Phase 1 is, these three phases are totally different from each other on the basis of timelines, on the basis of the cohort, small cohort size, large cohort size. Means कहीं पे कम human population in case of phase 1 10 to 100 human beings, phase 2 में 100 to 500, phase 3 में more than 500 means 500 to 1000. In phase 2 we are always considering the efficacious or the dose range. phase 1 में हमने safety और tolerable dose measure करनी है. phase 3 के अंदर हमने जो efficacious dose थी उसको confirm करना है by using the test drug with the standard drug, means marketed available drug. This is how we move from preclinical studies, lab studies on the animal studies from to phase 1 after the getting approval from DRAP, division pharmacy services, and then shifting from phase 1 to phase 2 and lastly phase 3. Okay students, this is how it should be remembered, in which phase we are measuring the safety patterns, in which phase we are measuring the efficacious pattern, in which phase we are confirming that efficacious already approved or the investigated efficacious pattern of that innovative drug, right? और डेवलप ड्रग प्रोमाइजिंग लेड कंपाउंड. सो हम इसको नरेट किस तरह करते हैं, रैप अप कैसे करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स को? पहला मरहला हिफाजत का सवाल. पहला मरहला हिफाजत का सवाल मतलब सबसे पहले सेफ्टी मेजर करनी है. दूसरा दिखाए असर का कमाल. क्या बात है, दूसरा दिखाए असर का कमाल. असर का कमाल मींस एफिकेसी को डिटरमाइन करना है. फिर मरीजों पर तहकीक हुई. मरीजों पर तहकीक हुई मींस, तहकीक मींस हो तो तहकीक पहले स्टेज से ही है. तहकीक का मतलब होता है कंफर्मेशन हुई. कंफर्मेशन अब आकर हुई है. टेस्ट तो हम ह्यूमन पर फेज 1 से ही कर रहे हैं क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स हैव बीन बिगन आफ्टर द गेटिंग द अप्रूवल फ्रॉम द ड्रैप. यूं दवा की तकमील हुई. दवा मींस मेडिकेशन वजूद में आई, मार्केट में लॉन्च हो गई. पहला मरहला हिफाजत का सवाल, दूसरा दिखाए असर का कमाल, फिर मरीजों पर तहकीक हुई, यूं दवा की तकमील हुई. दिस इज हाउ द क्लिनिकल ट्रायल्स बिगिन फ्रॉम स्टेज 1 to stage 3 and then getting approved into the after the getting the approval from again registration board of the DRAP for launching in the market and getting the access to the end consumers. Okay students, this is the last case history. लिथियम को हमने चेक करना है. लिथियम इज अगेन इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट. पीटीएक्स मतलब पैक्लिटैक्सेल इंड्यूस न्यूरोपैथी. सेम मॉडल हम डेवलप कर रहे हैं, वही एंटी कैंसर ड्रग जिसने न्यूरोपैथी कॉज करनी है, लेकिन अब नया कंपाउंड आ गया है. इस नए कंपाउंड ने ऑलरेडी प्री क्लिनिकल टेस्टिंग कर ली, सक्सेसफुल हो गया था.
आर्टिकल भी पब्लिश हो गया। नाउ द थिंग इज दैट डिफरेंट डोजेस के ऊपर और डिफरेंट बिहेवियर टेक्निक्स ऑलरेडी हाईलाइटेड है, हॉट प्लेट, ओपन फील्ड टेस्ट, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, दीज आर डिटेक्टेड थ्रू दैट बिहेवियर टेस्ट। जिस तरह आप अगर हॉट प्लेट टेस्ट को करें तो इसे न्यूरोपैथी विड्रॉल लेटेंसी पता चल रही होती है, जो ऑलरेडी ग्राफ में शो की गई है। एक पैक्लिटेक्सेल एल आई मतलब लिथियम पैक्लिटेक्सेल इंड्यूस्ड एनिमल प्लस लिथियम एडमिनिस्टर्ड ड्रग को देखें सेकंड बार के अंदर, और थर्ड पैक्लिटेक्सेल डिजीज को देखें। पैक्लिटेक्सेल इज द डिजीज ग्रुप, पैक्लिटेक्सेल आईएल इज द इंटरवेंशन ग्रुप। अगर आप दोनों बार की हाइट को मेजर करें, यू विल बी एबल टू नोट दैट और ऑब्जर्व दैट कि लेटेंसी पीरियड पैक्लिटेक्सेल प्लस लिथियम इंड्यूस्ड का कम है। द रीजन इज दैट लिथियम ने इसको मिटिगेट किया, किसको, पैक्लिटेक्सेल इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी को, जिसकी वजह से लेटेंसी पीरियड कम आया। लेटेंसी का मतलब होता है कितना टाइम लेगा एनिमल मतलब माइस या रैट रॉडेंट अपने पॉ को विड्रॉ करने के लिए। अगर वो स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, स्किन इंडक्शन है, तो उसके आपने विब्रेसल पैड पे टच करना है। क्या हॉट प्लेट है तो आपने हॉट टेम्परेचर प्री हीटेड मेटल या प्री हीटेड प्लेट को उसके साथ टच करना है, और वो पॉ विड्रॉ करने में जितना टाइम ले रहा है आपने स्टॉप वॉच ऑन करके मेजर करना है। आफ्टर मेजरिंग दैट गेटिंग दोज रीडिंग्स यू नीड टू प्लॉट द ग्राफ यूजिंग द डिफरेंट सॉफ्टवेयर, दैट इज वन ऑफ देम इज द ग्राफ पेट पेजर। ठीक हो गया। सो ये पब्लिश्ड आर्टिकल है, ये वैलिडेटेड अप्रोच है। नाउ व्हाट इज द थिंग व्हिच नीड्स टू बी कंसीडर और टेक इनटू एन एक्शन। स्टूडेंट्स अब पता है क्या हुआ, एक और मुसीबत पैदा हो गई, एक और ऑब्स्टेकल, एक और हर्डल केम इनटू बीइंग, एंड दैट हर्डल वाज पिन प्रिक एक्सपीरियंस। पिन प्रिक एक्सपीरियंस, व्हाट इज द पिन प्रिक एक्सपीरियंस स्टूडेंट? पिन प्रिक्स ने क्या किया, पिन प्रिक इज द प्री क्लिनिकल इंटरवेंशन ऑन द न्यूरोपैथी, preclinical intervention on the neuropathy to prevent and reduce chemotherapy induced synopsis, chemotherapy induced साइनोप्टिक सिम्टम्स। कहने का मतलब कि कीमोथेरेपी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, न्यूरोपैथिक सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे थे, तो प्री क्लिनिकल इंटरवेंशंस दोबारा की गई, रिवाइज की गई। ये दोबारा करने से क्या हुआ कि हमें लिथियम जो ऑलरेडी पहले प्री क्लिनिकल टेस्टिंग के बावजूद पब्लिश भी रिजल्ट हो सके या गुड क्लिनिकल आउटकम्स आए, हमने क्या किया, अपने स्टडी प्लान को चेंज कर दिया, एनिमल टेस्टिंग को चेंज कर दिया, एनिमल मॉडल चेंज कर दिया उसी ड्रग को दोबारा टेस्ट करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, प्री क्लिनिकल टेस्टिंग का मतलब होता है कि आपने क्या करना है, दोबारा वही कंपाउंड लेके, वही इन्वेस्टिगेशनल डेवलप ड्रग लेके उसको प्री टेस्ट प्री क्लिनिकल टेस्टिंग को रिवाइज करना है यूजिंग सेम पैरामीटर्स, यूजिंग सेम प्रोसेसेस, लेकिन आपने क्या करना है, एनिमल मॉडल डिफरेंट करना है। तो स्टूडेंट पिनप्रिक ने किया क्या, सबसे पहले उसने मल्टी सेंट्रिक अप्रोच को यूज किया। मल्टी सेंट्रिक का मतलब होता है कि उसने डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ माइस, डिफरेंट एरियाज से लिया, अपनी अप्रोच, अपने सैंपल साइज को इंक्रीज किया। पहले मैं सिर्फ सिंगल सेंट्रिक हो रही थी, जब मैंने लिथियम वाला स्टडी की थी, सिंगल सेंट्रिक मतलब सिंगल मॉडल। इस दफा उसने क्या किया, एनिमल मॉडल को ना ब्रेस्ट कैंसर ट्यूमर लगा दिया, ब्रेस्ट कैंसर इंड्यूस कर दिया जीनोग्राफ्टिंग के थ्रू। अब पहले तो मैं स्पोरेट डॉले रैट नॉर्मल ले रही थी, जिस जो नॉर्मल हेल्दी थे, इस दफा वो ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटी के साथ है, ऑलरेडी उनको ब्रेस्ट कैंसर है। उसके अंदर मैंने पैक्लिटेक्सेल इंड्यूस कराया, एक और मैंने का काम कर दिया, एक और डिजीज लगा दी न्यूरोपैथी। अब दो डिजीज होगी जिसको कहते हैं कोमॉर्बिडिटी, क्या थी, ब्रेस्ट कैंसर। और इसमें ये डबल ब्लाइंड स्टडी मींस कि ना इन्वेस्टिगेटर को भी नहीं पता ये। अब इस तरह पिन प्रिक से ये हुआ कि माउस के अंदर जीनोग्राफ्टिंग किस तरह की ह्यूमन की ब्रेस्ट लाइंस ली थी, डिफरेंट जेनेटिक सेल लाइंस ली थी, जिसमें आपके पास एमडी एमसीएफ डिफरेंट आती है। ठीक है, आपने सिर्फ फोकस ये करना है कि हुआ क्या, इसके फाइंडिंग्स क्या आई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हुआ ये, रिजल्ट्स ये आए कि इस दफा जो आपके पास पुराना, पिछली स्लाइड पे देखिए, जो मैकेनिकल एलोडीनिया, डिफरेंट जो न्यूरोपैथिक ट्रीटमेंट ट्रीट हो रहा था लिथियम से, इस दफा पिनप्रिक ने जब उसको रिवाइज किया प्री क्लिनिकल टेस्टिंग को इन द न्यू एनिमल मॉडल, जीनोग्राफ्टेड एनिमल मॉडल, इस दफा वो डिफरेंट स्टैट्स रिजल्ट्स, न्यूरोप्रोटेक्टिव एलिमेंट्स प्रोड्यूस नहीं हुए। दूसरी बात ये कि इस दफा एनिमल डेथ भी हो रही थी, क्योंकि ट्यूमर साइज की वजह से हम क्या करते हैं, एथिकल एंड पॉइंट तक रीच होने से पहले, एथिकल एंड पॉइंट का स्टूडेंट्स मतलब होता है अगर हमने एक ग्रुप में 6 एनिमल्स लिए हैं, तो एक एनिमल अपनी ट्यूमर ग्रोथ को मॉर्बिडिटी की वजह से मर गया है, तो हमने उस एनिमल को, अब 6 थे तो एक मर गया, 5 रह गए, 2 मर गए तो 4 रह गए, तो 4 एनिमल्स का मतलब है कि 6 से 4 पे आ गए, मीन सैंपल साइज रिड्यूस हो गया। तो इसका नुकसान ये होता है, फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट का मतलब होता है हमारे पास कम चांसेस होते हैं कि हम अपने ड्रग के ट्रू इफेक्ट को, ओरिजिनल इफेक्ट को मिटिगेट या ऑब्जर्व कर सके। सो अब इसका नुकसान ये हुआ कि वो कहते हैं कि जो लिथियम था उसकी स्टडी, जो प्री क्लिनिकल टेस्टिंग जो ऑलरेडी पहले हो चुकी है, वो गुड अप्रोच के साथ नहीं हुई। गुड अप्रोच के साथ इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो कहता है कि इसके अंदर रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्राइसिस बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब आपने हमेशा अपनी एनिमल स्टडीज को, डिफरेंट मॉडल्स को मॉर्बिडिटी के साथ लेना होता है।
कहने का मतलब ये है कि आपने क्या करना है कि सैंपल साइज पिछले वाले में कम था, इस दफा ज्यादा रखा। आपको हमेशा रैंडमाइज करना है, मल्टी सेंट्रिक अप्रोच रखनी है, डबल ब्लाइंडेड स्टडी रखनी है, और अपने एंड पॉइंट्स क्लिनिकल आउटकम्स को स्टैंडर्डाइज करना है। अगर पेन सेंसेशन मेजर कर रहे हैं तो उसमें भी पेन सेंसेशन ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में भी, ट्यूमर साइज मेजर कर रहे हैं तो ह्यूमंस में भी ट्यूमर साइज मेजर करेंगे। अगर कोई बायोमार्कर टीआरपी कोई भी एलिमेंट या कोई भी प्रोटीन मेजर कर रहे हैं तो वो ह्यूमंस में भी वही मेजर होनी चाहिए। तो इस तरह वी नीड टू मॉडर्नाइज। इस बेसिस पे हमने अपने प्री क्लिनिकल टेस्टिंग को मॉडर्नाइज किया। सो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स, नाउ द थिंग इज दैट इस टेबल में सबसे पहले जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच नीड्स टू बी फोकस इज ट्रांसलेशन इश्यूज। स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे देखें एसटीजी इंड्यूस्ड डायबिटिक न्यूरोपैथी, सेकेंड रो में देखें कीमोथेरेपी इंड्यूस, थर्ड में देखें नर्व लाइगेशन मॉडल। स्टूडेंट्स, ये जो डिफरेंट मॉडल्स हैं जिन्होंने न्यूरोपैथी करानी है, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि इंड्यूसर डिफरेंट है। पहले में स्टेप्टोजोसन है, दूसरे में आपने कीमोथेरेपी एंटी कैंसरस देके करना है, तीसरे में आपने लाइगेट करना है। लाइगेट का मतलब होता है आपने फ्यूचर के थ्रू, अब इन अदर लेमैन लैंग्वेज कहें, फ्यूचर इज अ मेडिकल जार्गन, लेमैन लैंग्वेज में कहें तो आपने किसी धागे या किसी तार के साथ आपने नर्व को लाइगेट करना है, बांधना है। उसको बांधने से क्या होगा कि नर्व सेंसेशन ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो आपने डिफरेंट मॉडल्स डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू डिजीज तो करवा दी, लेकिन ट्रांसलेशन इशू का मतलब होता है इंडक्शन भी हो गई, इसके ऊपर हमने इंटरवेंशन पैटर्न्स भी अप्लाई कर दिए एनिमल्स के ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गया कि अगर मैं एसटीसी मॉडल को लेती हूँ या कीमोथेरेपी को लेती हूँ या नर्व लाइगेशन को लेती हूँ, मेरे पास प्रॉब्लम ये आ रही है कि ह्यूमन की जो फिजियोलॉजिकल पैटर्न है, जो ह्यूमन का जो पैथोलॉजिकल पैथोजेनेसिस है, ये ह्यूमन के अंदर जो डोजिंग यूज हो रही है और जो एनिमल के अंदर डोजिंग यूज हो रही है, इसमें फार डिफरेंस होता है। थर्डली, अगर ह्यूमन के अंदर भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो एनिमल की जो टेस्टिंग है वो सिंगल मॉडल या सिंगल सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए, मल्टी सेंट्रिक होनी चाहिए, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल होनी चाहिए, डबल ब्लाइंडेड स्टडी होनी चाहिए, कोहॉर्ट साइज लार्ज होना चाहिए। सो दीज थिंग्स came into an action came these were the highlighted after doing this. So students, this was the examples and these articles related to these models are already published. Translation issue का मतलब होता है which are the difficulties, barriers which are converting or which are making ourselves difficult to convert or translate lab findings into the clinical findings, clinical outcomes. For example, उसकी रीजन से हो सकती है या स्पीशीज डिफरेंट है माइस की, जिस तरह मैंने पहले स्पैराडोले हेल्दी स्पीशीज ली थी, इस दफा जीनोग्राफ्टेड माइस ले लिए थे, इसकी वजह से रिजल्ट्स आ गए खराब। दूसरा, अगर डिजीज मॉडल है तो पूरा डिजीज मॉडल, पूरी पैथोजेनेसिस जो इंड्यूस हो रही है एनिमल्स के अंदर, दिस इज नॉट सिमिलर टू द ह्यूमंस। थर्डली, डिजीज अगर अगर 10 mg की ड्रग मैं एनिमल में दे रही हूँ तो ह्यूमन में 10 mg की असर नहीं करेगी, मे बी इट लीड्स टू टॉक्सिक इफेक्ट और लीथल इफेक्ट, इट लीड्स टू द डेथ ऑफ द पेशेंट, मोर्टेलिटी रेट को एनहांस कर दे। फोर्थ वन, ह्यूमन सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है, उसकी पैथोजेनेसिस कॉम्प्लेक्स होती है एनिमल्स की निस्बत। दीज थिंग्स आर द फैक्टर्स विच लीड्स टू द ट्रांसलेशन इश्यूज एंड दिस इज हाउ वी आर फेसिंग द डिफरेंट चैलेंजेस। स्टूडेंट्स, अब इसका वे फॉरवर्ड भी है, एवरी प्रॉब्लम हैज ए सोल्यूशन। ठीक, अच्छा एक बात, एनिमल स्टडीज क्यों समथिंग समटाइम्स ट्रांसलेट नहीं करती, मींस के समटाइम्स एनिमल स्टडीज ट्रांसलेशन इश्यूज क्यों कॉज कर रही होती हैं। नंबर वन, रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्राइसिस। कहने का मतलब कि ह्यूमंस जो थी और एनिमल्स, उनमें अप्रोच स्टडी प्लान डिफरेंट है। कहने का मतलब वेरिएबिलिटी आ जाती है किसमें, मल्टी सेंट्रिक अप्रोच मींस के ह्यूमंस अगर आप एक इस्लामाबाद के ले रहे हैं तो डिफरेंट सिटीज के डिफरेंट होंगे। आपने इस्लामाबाद के कुछ सैंपल साइज लेना है, कुछ सैंपल आपने पिंडी से लेना है, कुछ फैसलाबाद से, तो डिफरेंट सैंपल साइज, इस तरह एनिमल्स आपने डिफरेंट स्पीशीज के लेने हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन मिटिगेट दिस इशू। सेकेंड पॉइंट, मॉडल लिमिटेशंस का मतलब होता है स्पीशीज डिफरेंट ना हो एनिमल्स की, उनको कोमॉर्बिडिटी ना हो, अगर है तो पहले भी उसमें कोमॉर्बिडिटी के साथ आपने उसको ट्रीट करना है, एनिमल मॉडल डेवलप करना है, और उसके बाद अगर आप पेशेंट पे काम करें तो पेशेंट को भी वही कोमॉर्बिडिटी हो, राइट। तीसरी बात, आपका डिजाइन फ्लो, डिजाइन फ्लो के अंदर फ्लॉज होते हैं। क्या मतलब, आप क्लिनिकल गाइडलाइन प्रोटोकॉल को, इनका जो डिजाइनिंग है वो इनएप्रोप्रिएट है। कहने का मतलब, आपकी ब्लाइंडिंग स्टडी, एक जगह सिंगल ब्लाइंड स्टडी कर रहे हैं, दूसरी जगह आप डबल ब्लाइंड कर रहे हैं, या आप कहीं पे स्मॉल कोहॉर्ट ले रहे हैं, कहीं पे लार्ज कोहॉर्ट ले रहे हैं। दूसरी बात, कि आप क्लिनिकल आउटकम किसी में कम मैयर कर रहे हैं एनिमल्स में, तो ह्यूमंस में कुछ और मैयर कर रहे हैं। टॉक्सिसिटी एफिकेसी का मतलब होता है कि डोज, कितनी डोज पे एनिमल टॉलरेट कर रहा है उस पेन को। फॉर एग्जांपल, पैक्लीडेक्सेल की कितनी डोज थी कि वो एनिमल ने इंड्यूस कराया न्यूरोपैथी, क्या वो डोज इक्वलेंट है
सेम इंडक्शन पैटर्न इन द ह्यूमंस, कि ह्यूमंस को इसी डोज से अफेक्ट हो रहा है? क्या जो इंटरवेंशन पैटर्न पैक्लिटैक्सेल इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी जो हुई है उसको मिटिगेट करने के लिए जो क्लिनिकल टेस्टिंग की, प्री क्लिनिकल टेस्टिंग रॉडेंट्स पे की है, उसी डोज पे एंड ह्यूमंस पे इफेक्टिव है या नहीं? सो ये जो ट्रेड ऑफ होता है, इसकी वजह से समटाइम्स animal experimentation are not going to be in line with the clinical experimentation. So students, फिर हमारे पास हर चीज का तो सोल्यूशन भी होता है, वे फॉरवर्ड भी होता है। तो उसका वे फॉरवर्ड ये है कि हम अपना स्टडी प्लान सेम रखें। वी नीड टू फिक्स डोजिंग, वी नीड टू develop the test the same drugs in the comorbid or the chronic modeling. We need to add biomarker or molecular techniques or the imaging techniques into the preclinical testing in the earlier stages. We need to standardize the dose. हमें सेक्स स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अगर ही फीमेल्स पे कर रहे हैं, फीमेल माइस का रिजल्ट अच्छा आया तो हमें फीमेल पेशेंट्स को डील करना पड़ेगा। क्या पता वो फीमेल पे जो इंटरवेंशन पैटर्न्स अच्छे आए, क्लिनिकल आउटकम्स आए, वो मेल पे ना आए। इसी तरह टाइमिंग्स डोज ड्रग की, एज पैटर्न्स देखने, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ताकि वेरिएबिलिटी इश्यूज कम हो जाए। दूसरी बात यह है कि अगर आप एक मॉडल पे काम कर रहे हैं तो आप दूसरे मॉडल पे भी काम करें, जिससे एसटीजी इंड्यूस है, पैक्लिटैक्सेल इंड्यूस है, लाइगेट कर करके, तो ताकि डिफरेंट पैटर्न्स पे आप मॉडल डेवलप करने के बाद यू विल बी एबल टू गेट द डेफिनेट और स्टैंडर्डाइज क्लिनिकल एंड पॉइंट्स। ठीक है। साथ एक और बात, आपको ये पता होना चाहिए कि आजकल अगर फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन को एक डिजीज है न्यूरोपैथी, तो उसको पेन भी हो रहा है, नमनेस भी हो रही है, और तीसरा क्या फील वो कर रहा है, सेंसलेस हो रहा है। तो आपने अगर पेन के मैयर को, ये क्लिनिकल आउटकम है ना, क्लिनिकल प्रॉब्लम है ना, तो पेन को मिटिगेट करने के लिए आपने एक मॉडल डेवलप करना है, इसको कहते हैं मैचिंग मॉडल, क्लिनिकल मॉडल। फॉर एग्जांपल आपने पेन मॉडल डेवलप करना है, तो जो आपने सिर्फ पेन पैरामीटर को मैयर करना है, जो कि क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है, उसमें आपने फॉर्मेलिन इंड्यूस, कैराजिनान, सीफीए, मतलब हमने इंड्यूसिंग एजेंट ही चेंज कर देना है, ताकि आप क्लिनिकल आउटकम को मिटिगेट करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए वी डू हैव द सिमिलर animal model. Similar animal model means animal model development should be in line with the clinical problem, match होना चाहिए। अगली बात students, so these are the things, lastly we need to collaborate, do collaboration or partnership with the preclinical researchers or the clinical teams or the human trials researcher or the investigator team, ताकि वो हमें findings दें, clinical problems क्या हैं, और उनके according हम animals develop करें, इससे investigational drug market में launch हो। सो स्टूडेंट्स, खत्म। आप बात इतनी है कि जो चीज अभी तक हमने स्टडी की है, तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है, यू नीड टू आंसर दोस क्वेश्चंस, राइट? सो इन विच फेज टॉलरेबल डोज इज एस्टैब्लिश्ड? इन विच डोज टॉलरेबल डोज इज एस्टैब्लिश्ड? कौन सा क्लिनिकल फेज ऐसा है जिसमें आपने टॉलरेबल डोज को एस्टैब्लिश करना होता है? क्लिनिकल फेज 1, क्लिनिकल फेज 2, क्लिनिकल फेज 3। Students, phase 1, phase 2, phase 3. Maheen Ali Phase one. answered that phase 1 because she attended the tomorrow's or former session, right? Very good. Second question is Fiza, Shahtaj, सबने आंसर किया फेज 1, वेरी गुड। डोज रेंज कब कंफर्म होती है क्लिनिकल स्टेज और ट्रायल में? किस फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल के अंदर डोज रेंज को हम कंफर्म करते हैं? फेज 1, फेज 2, फेज 3। मैंने कहा डोज रेंज। फिजा नाज आंसर दैट फेज 2, दिस इज द करेक्ट आंसर। मैं रिपीट करती हूँ, फेज 1 के अंदर हमने सेफ्टी और टॉलरेबिलिटी को चेक करना होता है, फेज 2 के अंदर हमने डोज रेंज को और एफिकेसी को चेक करना होता है। वेरी गुड शाहताज, एमन नसीर, आमना शमशीर, एवरीबडी आंसर दैट, मोहम्मद इस्माइल आंसर दैट, करेक्ट आंसर, फेज 2 इज द आंसर। नेक्स्ट, एक मिनट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज व्हेन टू अप्लाई फॉर द सीटीए। ड्रैप के अंदर क्लिनिकल ट्रायल एप्लीकेशन हम किस फेज पे अप्लाई करते हैं? एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन के बाद करते हैं, पहले करते हैं, या फेज 1 के बाद करते हैं, या फेज 3 के बाद करते हैं? स्टूडेंट्स, व्हेन टू अप्लाई फॉर द सीटीए? Before clinical studies, after clinical studies, after preclinical experimentation, or before preclinical experimentation? Tuba answered correctly after preclinical studies. And clinical trial application अपने नाम से ही बता रहा है कि क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन लेने के लिए हमने एप्लीकेशन लिखनी है या सबमिट करानी है, फाइल करनी है टू अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, दैट इज ड्रैप, किधर? डिवीजन ऑफ फार्मेसी सर्विसेज। ठीक है। तो आफ्टर प्री क्लिनिकल स्टडीज, आफ्टर एनिमल्स एक्सपेरिमेंटेशन, जो अभी हमने थ्रू आउट अपने सेशन में पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच फेज इज रिलेटेड टू एफिकेसी डेवलपमेंट? किस क्लिनिकल फेज के अंदर एफिकेसी को डिटरमिन करते हैं? किस फेज के अंदर एफिकेसी को डिटरमिन करते हैं? फेज 1, फेज 2, फेज 3। स्टूडेंट्स, फेज 1, फेज 2, फेज 3, विच फेज के अंदर हमने एफिकेसी को मेजर करना है? फेज 1 या फेज 2? फेज 2 इज द करेक्ट आंसर। फिजा, तूबा, सहर, इम्तियाज, अलीना, रजाक, एवरीवन आंसर। रिमशा, मोहम्मद इस्माइल, रिपीटेड कैंडिडेट्स, रिपीटेड पार्टिसिपेंट्स, रिपीटेड गुड स्टूडेंट्स।
जिन्होंने केयरफुली लिसन किया है, ये आगे आपको काम आएंगी चीजें स्टूडेंट्स। एफिकेसी स्टैब्लिशमेंट का जो आंसर है फेज 2 इज द करेक्ट आंसर एंड यू पीपल आर अटेंटिवली present in the whole session. Thanks a lot. Very good. Second last question of this session is the what is the primary purpose of using the animal models in the preclinical pharmacology? Students, ये MCQs हैं, कुछ options हैं। हम animal experimentation क्यों करते हैं? क्लिनिकल ट्रायल्स को रिप्लेस करने के लिए, या ह्यूमन डिजीज को क्योर करने के लिए, या सेफ्टी एफिकेसी को डिटरमिन करने के लिए ह्यूमन ट्रायल्स पे जाने से पहले, या मैन्युफैक्चर ड्रग करने के लिए? विच वन इज द करेक्ट आंसर? स्टूडेंट्स सही सही आंसर दें। वेरी गुड, वेरी गुड। रिमशा, अलीना, माहीन, तूबा, सहर, अफजल, नौशीन, समरीन, सारा, अलीना, एवरीबडी, मिनाहिल, इवन फिजार, एवरीबडी आंसर्ड ऑप्शन सी इज द करेक्ट एंड दिस इज द वेरी करेक्ट आंसर। हम एक्सपेरिमेंटेशन इसलिए करते हैं कि ह्यूमन को अप्रोच करने से पहले हम सेफ्टी एफिकेसी पैटर्न्स मेजर कर लें, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेशनल फेलियर इन द ड्रग डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ट्रांसलेशनल फेलियर या ट्रांसलेशनल इश्यूज का मतलब क्या होता है? सक्सेसफुल कन्वर्ट, क्या हमारी ड्रग सक्सेसफुल टैबलेट फॉर्मुलेशन की फॉर्म में आ गई है, या एनिमल मॉडल्स के जो रिजल्ट है वो इनएबिलिटी है कि वो रेप्लिकेट ह्यूमंस में वही रिजल्ट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते? क्या हमने बहुत सारी ड्रग्स ओवर प्रोड्यूस कर दी हैं, या हमने बहुत सारी क्लिनिकल ट्रायल्स कर दी हैं? इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? ओवर प्रोडक्शन ऑफ ड्रग है या इनएबिलिटी ऑफ एनिमल मॉडल है? विच इज द करेक्ट आंसर? विच इज द करेक्ट आंसर? ट्रांसलेशनल फेलियर का मतलब है ट्रांसलेशनल इश्यूज क्यों आते हैं? ट्रांसलेशनल इश्यूज इसलिए आते हैं, मतलब ये है कि इसका वो डेफिनेशन जो मीनिंग पूछ रहा है कि हमारे पास एनिमल मॉडल के जो रिजल्ट्स हैं वो चैलेंजेबल हैं, उनकी इनएबिलिटी है, वो रेप्लिकेट नहीं हो सकते। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। सेम पार्टिसिपेंट्स एंड एडिशनल वन इज द अरीबा, अलिशबा एंड मलाइका आलम। So very good students, you people are very attentive, you remained attentive in the whole session. This is how we come into an action. This is the wrap up. मंजिल शिफा तक पहुंचना आसान कहाँ होता है? मंजिल शिफा तक पहुंचना आसान कहाँ होता है? प्री क्लिनिकल सफर ही हर कामयाबी की दास्तां है। प्री क्लिनिकल सफर मतलब प्री क्लिनिकल फार्माकोलॉजी मतलब एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन ही हर कामयाबी की दास्तां है। We will not be able to bypass that. We are not bound to bypass animal experimentation and then jump into clinical trials or the human experimentation. मंजिल शिफा तक पहुंचना कहाँ आसान होता है? It took too many years, 10 to 12 years from drug development to ड्रग डिस्कवरी टू ड्रग डेवलपमेंट एंड देन मार्केटिंग अप्रूवल 10 से 12 साल ले लेता है, और एनिमल ट्रायल्स प्री क्लिनिकल ट्रायल्स 1 से 2 साल लेता है एमफिल लेवल पे। सो इट इज नॉट इजी टास्क, इट इज अ डॉन्टिंग टास्क। प्री क्लिनिकल सफर ही हर कामयाबी की दास्तां है। यही तो एक फर्स्ट और क्रूशियल स्टेप है एंड दिस इज द रीजन इट इज ऑफ क्रूशियल स्टेप एंड इट इज अ ह्यूज इम्पैक्ट। स्टूडेंट्स, this is my contact details. You can contact me either directly or through the different platforms or current platform that is RxMed Nexus. And thanks a lot for your patience and attentive or for this very detailed session. So you can ask or throw up the question, so I will be able to answer you people in very appropriate time bound. स्टूडेंट्स, रेज योर क्वेश्चन। सबसे पहले अपने हैंड रेज करें, फिर क्वेश्चंस करें, या जो मॉडरेटर है यू कैन फैसिलिटेट मी इन दिस रिगार्ड। थैंक यू। Yes, ma'am. Thank you so much. If someone has question, please raise your hand. Yes, Mohammed Ismail, you can speak. अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद इस्माइल फ्रॉम केमयू। मेरा क्वेश्चन ये ना कि मैं फार्माकोलॉजी में मेरा है कि मैं आगे एमफिल करूं, राइट। लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा कि कौन सा इसमें सब्जेक्ट है, कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है। इस पे ज़रा आप मेरा कैरियर काउंसलिंग अगर कर सकती है तो। Okay, fine. Ismail, this is very good question, very good question. अच्छा स्टूडेंट्स, जिनके प्लीज क्वेश्चंस के जब आंसर्स हो रहे होते हैं यू शुड बी ऑल ईयर्स, यू शुड कीप योर ऑल ईयर्स इन द सेशन। तो इसमें ये होता है कि अब इनका आंसर ये काफी स्टूडेंट्स के इस तरह के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस इनफॉर्मल से होते हैं, तो आपने वेन एवर यू आर गोइंग टू टेक इंटरेस्ट और गेटिंग योर कमेंसिंग योर रिसर्च स्टडीज, तो सबसे पहले तो सवाल होता है कि इंस्टीट्यूशन। तो स्टूडेंट्स, मैं एक चीज आज क्लियर कर दूं सारी जिंदगी के लिए, इसको दिमाग में बिठा ले, इंस्टीट्यूशन डजेंट मैटर। कहते हैं ना इंस्टीट्यूशन ये वाला बहुत नाइस है, रिफा, अगर वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्विन सिटीज दैट इज रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद, रिफा इज द बेस्ट, कस्ट इज द बेस्ट, गोमल यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट, एंड दिस XYZ इंस्टीट्यूशन इज नॉट गुड। तो स्टूडेंट्स, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं बिफोर आंसरिंग योर क्वेश्चन, रिक्वायर्ड क्वेश्चन स्पेसिफिकली, इंस्टीट्यूशन डजेंट मैटर। द थिंग विच मैटर्स इज योर पैशन।
दिस इज योर क्लैरिटी कि आप कितना क्लियर है अपने रिसर्च के बारे में। जाहिर बात है एक फार्मडी का स्टूडेंट तो उसको ABC भी नहीं पता होती। तो स्टूडेंट्स इसको फाइंड आउट, इस चीज को कि जो खला या डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए यू नीड टू मेक कोऑर्डिनेशन, यू नीड टू मेक कनेक्शंस। अब यही तो प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, सेशंस होते हैं, इसमें हम सारे जूनियर सीनियर्स कोलैबोरेटर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। तो इस तरह हम एक दूसरे से पूछ लेते हैं, एक दूसरे फिमिलैरिटी होती है, हम लोग अवेयरनेस आती है। तो एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि इफ सम अगर आप लिटरेचर रिव्यू करना शुरू करें, आपको कोई भी डिजीज पसंद है, फॉर एग्जांपल अगर फार्माकोलॉजी है, फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोग्नोसी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, पहले तो ये डिसाइड करें आपने किस डोमेन में जाना है। और ये जो डोमेन की सिलेक्शन होती है ये आपको फॉर्म डी बता देता है, 5 साल पूरे बता देता है कि किस पूरे 5 साल में आपका सबसे अच्छा इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा रहा है। पहले तो ये सिलेक्ट करना होगा। आप किसी कोई आपको कन्विंस नहीं कर सकता, कोई फोर्स नहीं कर सकता, और किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखना है कि जहां एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है वहां पैशन ग्रो करता है, ये याद रख लें आप। दूसरी बात ये कि जब आपको अपना पैशन पता चल गया, आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया है, तो आपने कोई भी इंस्टीट्यूट जो भी आपके नरबी है, जो आपको फैसिलिटेट करता है, जो आपके लिए कन्वीनियंट है, उसको चूज कर लें। उसके अंदर एडमिशन लेने के लिए आप तो आ गया MPhil और PhD के एडमिशन के लिए हैट और GRE आ गया। पहले नहीं था, अब हैट और GRE का स्कोर प्लस आपने इंस्टीट्यूशनल का टेस्ट, जो एकेडमिक टेस्ट होता है, आपने यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी देना होगा, राइट। उसके बाद आपका इंटरव्यू एंड देन आपके पास एडमिशन आपका होता है, लिस्ट लगती है। अब ये एक एडिशनल स्टेप है। तो स्टूडेंट्स, आपने फिर इंस्टीट्यूशन इस बेसिस पे चूज करना है। हर जगह आप हैट बार बार डेट उसकी डिफरेंट होती हैं, स्कोर्स होते हैं, डिफरेंट अटेम्प्ट्स होती हैं। तो उसके बेसिस पे आप इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करिए, जिस इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन होता है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो बेहतर होगा। फिर आप सुपरवाइजर देख लें, एक दफा सर्वे कर दे फैकल्टी का, PGs को कौन डील कर रहा है। स्टूडेंट्स बड़े स्मार्ट होते हैं इस मैनर में। फिर उन अच्छा सुपरवाइजर को चूज करने का भी तरीका होता है, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखें, उनके आर्टिकल्स पब्लिकेशंस देखें। अब पब्लिकेशंस आर्टिकल्स देखने के लिए आपने लैपटॉप आपके पास होना जरूरी है। लैपटॉप होने के लिए आपको डिफरेंट ब्राउजर्स और डिफरेंट डेटाबेसेस का पता होना चाहिए। वो कौन कौन से होते हैं उस पर भी इंशाल्लाह हम लेक्चर रखेंगे। पबमेड हो गया, साइंस डायरेक्ट, इस पर डिफरेंट आर्टिकल्स, उनके रिसर्च गेट पे आर्टिकल्स होते हैं, आपने देखने सबसे ज्यादा आर्टिकल्स इंपैक्ट फैक्टर के साथ, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ आर्टिकल्स और मैक्सिमम इंटरेस्ट उस सुपरवाइजर का उसके नाम से कौन सा अलाइ कर रहा है। अपने इंटरेस्ट को देखें वो अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। इसका सुपरवाइजर भी चूज हो गया आफ्टर सेलेक्टिंग द इंस्टीट्यूशन। एंड देन उसके बाद आपने सुपरवाइजर भी चेक करने के सेलेक्ट करने के बाद फार्माकोलॉजी का 1 2 3 डोमेन में से न्यूरो पे कौन कर रहा है, CVS पे कौन काम कर रहा है, न्यूरो इन्फ्लेमेशन के अंदर कौन कर रहा है, न्यूरोपैथी के अंदर कौन कर रहा है। तो आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, और इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा, लिटरेचर सर्वे करने से। बार बार आर्टिकल्स को एक आर्टिकल पढ़ेंगे बहुत अजीब लगेगा, दूसरा पढ़ेंगे नहीं अच्छा लगेगा, तीसरा हर वक्त आर्टिकल्स ही पढ़ते हैं, फिर चीजें समझ आना शुरू होंगी। फिर आपको पहले तो ये भी बच्चों को नहीं पता रिसर्च रिव्यू आर्टिकल में क्या फर्क होता है। एक आर्टिकल को देख के यू आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू थिंग्स और नॉट। तो इस तरह आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता थिंग्स चीजें पता चलती हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह यू विल बी एबल टू गेट मतलब हेल्पफुल और फैसिलिटेटिंग, दिस विल पेव योर पाथ इन सेलेक्टिंग द इंस्टीट्यूशन एज वेल एज सुपरवाइजर, एंड देन दैट सुपरवाइजर हैविंग द सेम एरिया ऑफ इंटरेस्ट रिजेंबलिंग यू। ठीक है। तो फिर आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। ये इतनी आसान आंसर नहीं है कि एक ही लेक्चर या एक ही सेशन में आप पूरा आंसर हो जाए। इट इज वेरी कहते हैं ना लेंथी आंसर के। इतना आपको पता चल गया। अगर कोई और क्वेश्चन है यू मे आस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Thank you, Muhammad Ismail. Yes, Mr. Muhammad Okir, you can ask your question. Students, please raise your hands. Mr. Zokir, please ask your question. Okay, if anyone else have any question, please ask. Raise your hand and ask. Anybody else, you may be able to open up your mic first. मेरे ख्याल से माइक ओपन करेंगे तो क्वेश्चन जो है आप थ्रो अप कर Please, सकते हैं। please open your mic and raise your hand and ask the question, please. आई थिंक कुछ क्वेश्चंस है जो चैट में पूछे गए, आप जरा से देख के तो मैडम। So, ma'am, Miss Fizan asked a question: what factors contribute to the failure of certain drugs in clinical trials despite showing promising preclinical results? Miss Fiza का क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स देखें, फिजा नाज आपका क्वेश्चन है, सब सुन लें। इफ somebody skips it, what factors are responsible for the failure of certain drugs which are
प्रेजेंट इन दी क्लिनिकल ट्रायल्स। कहने का मतलब प्री क्लिनिकल टेस्टिंग फेल होती है तो हम उसको चैलेंज कर लेते हैं, राइट। उसको अगर वो डेफिशिएंसीज को फुलफिल करता है वो क्लिनिकल ट्रायल में आ जाता है, ठीक। इनका सवाल ये है कि क्लिनिकल ट्रायल में भी अगर फेल हो जाए तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्लिनिकल ट्रायल में भी फेल करते हैं। तो स्टूडेंट्स कितना इसका आंसर इस क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ है। क्या मतलब, क्लिनिकल ट्रायल्स के डिफरेंट फेजेस होते हैं, फेजा 1 2 3, और बोनस जो फेज होता है फेज 0 माइक्रोडोजिंग, यहां से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि मोस्टली मेंशन बहुत रेयरली किया जाता है स्टडीज के अंदर। स्टूडेंट्स फेज 1 2 3, हम फेज 0 पहले प्री क्लिनिकल टेस्टिंग करते हैं ना, तो वो सक्सेसफुल हो जाती है तो हम फेज 0 पे आते हैं, माइक्रोडोजिंग चेक करते हैं, ड्रग की डोज को चेक करते हैं, उसकी सेफ्टी पोटेंसी को चेक कर रहे होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद वो पास होता है तो फेज 2 में आते हैं, और फेज 2 में पास होता है तो फेज 3 में आता है ना, और उसके बाद जाके मार्केटिंग अप्रूवल मिलती है आफ्टर मतलब जो रेगुलेटरी एजेंसीज एफडीए और वो डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स अब वो पास कैसे हो रहा होता है, वो डिफरेंट आउटकम्स होते हैं, एंड पॉइंट्स क्लिनिकल आउटकम्स होते हैं। क्लिनिकल आउटकम्स का मतलब बच्चों होता है कि क्लिनिकल एंड पॉइंट्स मतलब मेजरेबल आउटकम्स, जो कि डिटरमिन करते हैं कि ये जो हम ड्रग या ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेशनल ड्रग है, वो बेनिफिशियल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं यूज करती हूँ एक ड्रग जिसका प्रीगैबलिन या गाबापेंटिन है, पेन को रिड्यूस करने के लिए। ब्लड प्रेशर एंटी हाइपरटेंसिव यूज करती हूँ ब्लड प्रेशर को इंप्रूव करने के लिए। लेकिन अब होता यह है कि क्लिनिकल आउटकम्स के भी डिफरेंट बच्चों पैरामीटर्स होते हैं। प्राइमरी आउटकम होता है, सेकेंडरी आउटकम होता है, सरोगेट आउटकम होता है। सरोगेट आउटकम का मतलब होता है कि हम ना डिफरेंट मार्कर्स को मेजर करते हुए कि एक्चुअल आउटकम, फॉर एग्जांपल डायबिटीज होने से पहले हमने एक मेजर करना आउटकम, उसको सरोगेट, फॉर एग्जांपल हमने ग्लाइसेटेड एचबी मेजर करना है। सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को चेक करने के लिए हमने ब्लड प्रेशर को मेजर करना है। हमने हाइपरलिपिडीमिया के केस में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को चेक करना है। कैंसर के केस में ट्यूमर साइज को चेक करना है। ये जो ग्लाइसेटेड एचबी, ब्लड प्रेशर, एलडीएल, ट्यूमर साइज, इसको जो मेजर कर रहे हैं इनको कहते हैं सरोगेट मार्कर्स। एक तो ये बात। सेकेंडरी का मतलब होता है कि अगर हमने पेशेंट को बीमारी लगी, वो हॉस्पिटल में 5 दिन के लिए एडमिट था, वापस डिस्चार्ज हो गया, क्या वो 10 दिन तक, 5 से 10 दिन तक तो नहीं चला गया, 10 से 20 दिन तक नहीं, महीना तो नहीं इसने हॉस्पिटल में स्टे किया। हॉस्पिटल में स्टे क्यों किया? क्योंकि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इसकी बेसिस पे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है, सिम्टम्स डिसअपेयर हो रहे हैं या नहीं। फिर प्राइमरी आउटकम ये चेक करते हैं कि आप पेन कम हुए, ब्लड प्रेशर कम हुए। तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी और surrogate endpoints हैं क्लिनिकली, इनकी बेसिस पे वी आर एबल टू डिटरमिन दैट आइदर क्लिनिकल ट्रायल phases are successful or not. We are able to switch from 1 to 2 or 2 to 3, or we are able to, after passing clinical trial, whole trials from starting from the 0 to 3, we will be able to get a grant approval from the regulatory framework or not. They will grant us or not for launching in the market. So I hope that this question has been cleared, or your problem has been addressed. Fizanaz, if you are still confused, you may answer it. Thank you, most welcome, Fizanaz. So, ma'am, we have one more question. Yes, please. Can ever in vitro models eventually reduce the dependence on animal studies in pharmacology in upcoming future? जरा रिपीट करें, एक फ्लो में Can आपने ever क्वेश्चन बोल दिया। can ever in vitro models eventually reduce the dependence on animal studies in pharmacology in upcoming future? इन विट्रो, अच्छा, ये नौशीन बीबी ने सवाल किया है, शी Yes, इज वन ऑफ yes, माय Naseem. स्टूडेंट। नौशीन प्लीज बी अटेंटिव, आई एम एड्रेसिंग योर प्रॉब्लम। अच्छा, क्या इन विट्रो मॉडल्स जो होते हैं वो डिपेंडेंस रिड्यूस कर सकते हैं एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर, डिपेंडेंस इन द फार्माकोलॉजी इन द, ऑब्वियसली यस, दे डू मतलब रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन। हाउ, कैसे? स्टूडेंट नौशीन इस तरह कर सकते हैं। आपको पता है इन विट्रो मॉडल्स का मतलब क्या होता है? इन विट्रो मॉडल्स का मतलब होता है कि आपने लैब के ऊपर लैब टेस्टिंग करनी है। अब लैब टेस्टिंग कैसे करनी है? आपने सेल्स टिश्यूज लेने हैं, कैसे करने हैं? कल्चरिंग करके करने हैं, या आपने जो स्ट्रक्चर एक्टिवेटेड रिलेशन एक्टिविटी, सार्स एक्टिविटी, जो आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में आगे वाले प्रॉफ्स में पढ़ेंगे, इफ यू आर, मतलब आप अभी यंगर है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉफ के स्टूडेंट है, ठीक है। तो जो फार्मडी के उनको बेहतर पता। तो ये जितनी हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग, लेड ऑप्टिमाइजेशन, लेड आइडेंटिटी, इन चीजों के थ्रू इन विट्रो मॉडलिंग करते हैं। सेकेंडली इसको भी अगर हम डिस्कवरी को भी छोड़ें, अगर हम ड्रग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम मॉलिक्यूलर बायोमार्कर्स की बेसिस पे, और बायोमार्कर तो इट इज ऑलरेडी और ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन। लेकिन बिफोर एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन वी कैन डू इन विट्रो मॉडल्स टू गेटिंग दी आइसोलेटेड टिश्यूज। एक्स वीवो स्टडीज कर सकते हैं, डिफरेंट सेल्स टिश्यूज को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने माउस एक ले लिया, ठीक है, माउस का मैंने टिश्यू लिया, ये माउस की सेल लाइन ले ली नॉर्मल की, ठीक है। मैंने क्या ह्यूमन की ब्रेस्ट सेल लाइन डाल दी, कैसे डाली? जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिजीनोग्राफ्टिंग करके। उसके बाद उन दोनों को मिक्स करके उसको ग्रो करा दिया, कल्चरिंग करा दी। कल्चरिंग मिक्स का मतलब ये नहीं कि वहां से उठाया, इधर डाला चम्मच से, ऐसे नहीं होती मिक्सिंग। इट विल टेक टू मच टाइम। सेल कल्चरिंग टेक्निक्स को फॉलो करना
पता है कल्चर मीडिया डालना है, ग्रोथ फैक्टर्स डालने हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स डालने हैं, साइटोकाइंस, ये डिफरेंट चीजें, ग्रोथ डिफरेंट चीजें डाल के आपने उनको ग्रो करना है, टाइम इंक्यूबेट करवाना है। इंक्यूबेट कराने के बाद आपके पास एक सेल लाइन जनरेट होती है, उसकी बेसिस पे डिफरेंट थिंग्स को, मतलब इंडक्शन इंड्यूसर एजेंट्स को पेट्री डिश के अंदर डालना है। फिर उसका काफी प्रोटोकॉल है, जिस तरह आप डिफरेंट पीसीआर एलाइजा कर रहे होते हैं। तो इस बेसिस पे हम ह्यूमन के अंदर डायरेक्ट इंटरफेरेंस करने के बजाय या डायरेक्ट इंटरेक्ट करने के बजाय इनविट्रो मॉडल्स के थ्रू भी हम स्टडी कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने शायद कल के लेक्चर में बताया था, मतलब पुराना सेशन। Noshin, I hope that it is understood. You are able to get my point. If not, if no, then please raise your question and again. I'm here to answer you. Noshin, thank you so much. Most welcome. हाँ, yes, ma'am, you are my student. Yes, you are my student. आप रही हैं स्टूडेंट, मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट नौशीन बीबी रही हैं, बहुत अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Ma'am, we have done for the questions. ओके, थैंक यू। Okay, all right, everyone. As we come to the end of this amazing session, I hope you all find it insightful, inspiring, and full of valuable knowledge that you can carry forward in your academic and professional journey. On behalf of the entire team, I would like to express our heartfelt gratitude to our speaker for sharing both valuable insights, knowledge, and experience with us today. Your time and contribution truly mean a lot, and we are genuinely thankful for such an enlightening session. And a big thanks to all of you, the participant, as well for your active presence, engagement, and energy throughout the session. Your participation is what makes sessions like these truly successful and impactful. If you found this session helpful, don't forget to share your feedback and stay connected with us for more upcoming webinars and opportunities. So, as you all know, कि सर्टिफिकेट का जो लिंक है वो शेयर हो चुका है, तो फीडबैक फॉर्म में आपके लिए ओपन है फीडबैक। उसके अलावा अगर आप कोई चाहते हैं अपकमिंग वेबिनार आपके पसंदीदा टॉपिक पे हो, तो आप उसमें फिल अप कर सकते हैं। वी विल कंसीडर इंशाल्लाह।